Justification of the remit of the society. He further said that Prime Minister Modi has had a single point agenda to denying, destroying, defaming Nehru and Nehruvian legacy. What's your comment, sir? This shows the mindset of the Congress party. Today, the Prime Minister's museum is going to showcase the achievements of all the Prime Ministers of the country. Should the Prime Ministers who have served this country, including Narasimha Rao ji, Lal Bahadur Shastri ji, Deve Gowda ji, Inder Kumar Gujral ji, Charan Singh ji, VP Singh ji, their achievements should not be showcased? And if all the Prime Minister's achievements are being showcased in that space, in that library, in that museum, then how can the institution be named after just one family or one person? And to say that Nehruji's legacy is being destroyed and demolished, is Nehruji's legacy so frivolous and so trivial that if one institution is named after generically the Prime Ministers of India, Nehruji's legacy will be destroyed? There are hundreds and hundreds of institutions, awards, schemes, schools, roads, which are still named after the first family, after Jawaharlal Nehru ji, after Indira ji, after Rajiv ji. So does that mean that their legacy will only remain if everything is named after one family? This shows that for some people, only the first family is equal to India. Indira is equal to India. Nehru is equal to India. This is the mindset because of which they have never ever allowed the contributions of hundreds and hundreds of our freedom fighters to be put in the history textbooks. And today when the contributions of all prime ministers is being showcased, then the Congress party has a problem with that too. It only shows the pettiness and the kind of parivar bhakti that the Congress party indulges in. For them, parivar is above people. For them, dal and parivar is above desh, and that is why right from boycotting the program for 15th August to not allowing parliament to function and to putting parivar above everybody else and everything else, this is the mindset of the Congress party. मोदी का एकमात्र एजेंडा शुरू से रहा है कि जो नेहरू की लेगेसी है जो और उसको डिस्ट्रॉय करना, डिफेम करना, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं अपने ट्वीट में. क्या कहना है सर? देखिए, कांग्रेस की परिवारवादी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक परिवार महत्वपूर्ण है, देश नहीं. आज प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के तमाम प्रधानमंत्रियों के योगदान के जश्न मनाने का काम और उसे एक प्रकार से देश के सामने उसकी झांकी रखने का काम किया जा रहा है. क्या लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान कोई कम था? क्या नरसिम्हा राव जी का योगदान कम था? देवे गौड़ा जी का योगदान कम है? इंदर कुमार गुजराल जी, वीपी सिंह जी, चरण सिंह जी, क्या इनके योगदान को स्वीकारा नहीं जाना चाहिए? और यदि प्रधानमंत्रियों के योगदान का एक संग्रहालय बन रहा है तो किसी एक परिवार या एक प्रधानमंत्री के नाम पर इस संस्था का नाम कैसे हो सकता है? क्या बाकी के जो प्रधानमंत्री के परिवारजन और उनके समर्थक इससे ऐतराज़ नहीं करेंगे? और नेहरू जी की विरासत के बारे में जो जयराम रमेश जी बोल रहे हैं, क्या उनकी विरासत इतनी कमज़ोर है कि यदि एक संस्था का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाता है, मतलब प्रधानमंत्री संस्था के नाम पर रखा जाता है, तो नेहरू जी की पूरी विरासत खत्म हो जाएगी? मतलब क्या उनकी विरासत केवल नाम रखने तक ही टिकी हुई है क्या? और नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर अनेकों अनेक स्कीम, अवार्ड, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, सारी चीज़ें आज भी मौजूद है. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर सारी चीज़ें हैं. तो क्या इसी के आधार पर नेहरू जी की विरासत टिकी हुई है? ये मानसिकता को दर्शाता है कि हम ही देश है, हमारा परिवार ही देश है, इंदिरा ही इंडिया है, नेहरू ही इंडिया है. इस प्रकार की मानसिकता जब होती है तो परिवार को पीपल के ऊपर, देश के ऊपर रखा जाता है. आज सवाल ये बनता है कि भारत का जो लाल किले पर एक सार्वजनिक सामूहिक कार्यक्रम था 15 अगस्त का, उसका बहिष्कार करने से लेकर आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का विरोध करना, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, केवल एक परिवार महत्वपूर्ण है. और इसीलिए ये संकीर्ण मानसिकता का और अहंकारी मानसिकता का परिचय, और इसी मानसिकता के चलते देश के अनेकों हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके योगदान को कभी भी ठीक से स्थान नहीं दिया गया. आज़ादी के अमृत महोत्सव में भगवान बिरसा मुंडा से लेकर
तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को उनका सही स्थान भी दिया जा रहा है। सर, कल लड़ाई की बात की, नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई की बात की, अपीजमेंट के खिलाफ लड़ने की बात की, परिवार